we will discuss exceptional configuration. Exceptional configuration. So we have some elements. They do not follow the rule. वो rule नहीं follow करते of electron filling. हमारे पास जो rules है, मसलन वो है हमारे पास आपका प्रिंसिपल है, उसको follow नहीं करते. यानी they do not follow the rules. When the subshells we will discuss exceptional configuration. हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, they do not follow the rules. वो रूल फॉलो नहीं करते. Like chromium, copper. When the subshells differ slightly, when two subshells differ slightly in energy, यानी हमारे पास दो सबशेल ऐसे होंगे एलिमेंट में जो स्लाइटली डिफर करते हैं एनर्जी में. An electron may shift from the lower energy or lower energy subshell to the higher energy subshell. अब ये क्यों होता है? This happens because of two reasons. इसके ये क्यों होता है? ये शिफ्ट क्यों करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी सबशेल टू द हायर एनर्जी सबशेल? This happens because of the two reasons. इसके लिए जो रीजन है, नंबर वन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर सेकंड है एक्सचेंज एनर्जी. So first of all, we'll take this first reason, symmetrical distribution. हमें मालूम है symmetry leads to stability. Symmetry से stability आती है. Actually, the electronic configuration जो है ना, electronic configuration in which all the orbitals of a subshell are half filled or completely filled is more stable than the other configurations because of the symmetrical distribution of the electrons, symmetrical distribution of the electrons. यानी अगर configuration होगी half filled, यानी सारे orbitals, सारे degenerate orbitals in a particular subshell होंगे half filled या होंगे completely filled, वो वाली configuration मानी जाती है stable configuration as compared to the other configurations because of symmetrical distribution of the electrons. For example, I will quote here. I will put an example here. अगर हम लेंगे chromium की expected configuration of chromium, हम लेंगे that is ये हो गया chromium 24 इसका atomic number है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4 4s2. सो इसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन रूल, अगर ये रूल करेगा फॉलो देन ये इसकी एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है. अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 3d 4s, ये 3d 4 है, ऐसे में दिखाऊंगा जस्ट लाइक दिस. दीज आर 5d orbitals 1 2 3 4 एज पर हुंडस रूल. ये हो गया s ऑर्बिटल, इसमें 2 है 4s2. सो ये एक्सपेक्ट करना है बेसिक रूल. अब इसके बजाय यहां पर क्या होता है, टू गेट द हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन, क्योंकि डी में होती है 10 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें 5 बनेंगे ये बनेगी हाफ फिल्ड. सो दैट इज मोर सिमेट्रिकल, वो ज्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी. इसलिए टू गेट द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल. सो अब जो एक्चुअल कन्फिगरेशन बनेगी क्रोमियम की, दैट विल बी 3d5 4s2 like this. 1 2
3 4 5 और s में रहेगा 1। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो डी सब शेल की जो इसमें जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, उनकी जो कन्वर्जन है ना, यहाँ पर बन गई इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, दैट इज सिमेट्रिकल। सो दिस symmetry leads to stability. So it is a half-filled configuration. So as compared to this D4, it is more stable. So element will prefer to show this. So for getting stable configuration, the electron shifts from the low energy orbital to the high energy orbital. So why now electron shifts from low energy orbital to high energy orbital? To get the more stable configuration. That means to get the symmetrical configuration. Symmetrical is electrons, which that is half filled or fully filled or completely filled. These configuration, half filled or fully filled or completely filled, is more stable than the other configurations. Exactly, copper का भी ऐसे ही हम अगर लेंगे, copper का C इसका 29 एटॉमिक नंबर, इसका जो expected configuration है, expected, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2, ये इसका एक्सपेक्टेड है ऑन द बेस ऑफ रूल। अब ये रूल तो ये रूल वायलेट करता है, क्यों करता है वायलेट ये रूल? टू गेट द symmetrical distribution of electrons, to get completely filled configuration. So completely filled configuration is more symmetrical and more stable. So ऐसे हम लिखेंगे, फिर इसका आएगा ऐसे, ये बनेगा इसका 3d10 4s1, यहाँ से शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल, लो एनर्जी सब शेल टू द हाई एनर्जी सब शेल। सो इसका ऐसे बनेगा फिर कन्फिगरेशन, ये बनेगा ज़्यादा सिमेट्रिकल, completely filled 1 2 3 4 5, दिस इज, इसमें आएंगे 10, सो 3d10 और 4s में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। सो एज पर रूल 4s में 2 होनी चाहिए, मगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, so that the electronic distribution in the orbitals of the d subshell will become symmetrical and symmetrical and fully filled. So fully filled configuration, which is more symmetrical, is more stable than the other configuration. So the next second जो इसका reason है, second reason जो है इसका, that is exchange energy. Exchange energy का मतलब ये है, if I will take chromium, I will take इसका जो expected number है, that is D4, 3d4 4s1 4s2. So I will take D, the unpaired electron जो है ना, unpaired electrons having parallel spin, जो unpaired electron है इनमें parallel spin होता है, the unpaired electrons in orbitals with parallel spin, they exchange positions, they apply positions exchange करते हैं, conditions करते हैं positions exchange. During these exchanges, energy is released. So more the number of exchanges, more energy is released and more is the stability. जितने number of exchanges ज़्यादा होंगे, उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हम इसमें देखेंगे, अगर हम लेंगे इसका एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन क्रोमियम का, इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ये पहला इलेक्ट्रॉन करेगा एक्सचेंज इसके साथ पोजीशन, इसके साथ पोजीशन और इसके साथ पोजीशन, हो गई नंबर ऑफ एक्सचेंज 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड है, ये करेगा इसके साथ एक्सचेंज, इससे एक्सचेंज, हो गई नंबर ऑफ एक्सचेंज 2। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये करेगा इसके साथ, सो हो गई नंबर ऑफ एक्सचेंज 1। सो टोटल एक्सचेंज यहाँ पर हो गई 6। अब अगर मैं इसी का ले लूंगा, जो ये जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है फ्रॉम एक्चुअल कन्फिगरेशन जो इसकी है, एक्चुअल दैट इज 3d5 4s1। अब इसमें तो 5 होंगे, एक्चुअल है इसका, ये हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है। सो अब हम देखेंगे डी ऑर्बिटल्स में ऐसे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन करेगा इसके साथ एक्सचेंज, इसके साथ एक्सचेंज, इसके साथ एक्सचेंज और इसके साथ एक्सचेंज, हो गई नंबर अपने 4। दूसरा करेगा इसके साथ और इसके साथ, हो गई +3 एक्सचेंजेस। फिर करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ, हो गई नंबर ऑफ एक्सचेंज 2।
फिर हो गया ये करेगा इसके साथ, हो गया नंबर ऑफ एक्सचेंज 1, टोटल होंगे यहाँ पर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंज 10। सो D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर 10 है। सो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंज में हमने अभी बोला कि जितनी नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा और मोर इज द स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो इसका ये मतलब है, अगर हम यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एक्सचेंज जो D जब कुलमेंट का होता है 3D4 यानी D4 में उसमें 6 ही है, D5 में 10 है। सो D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 है और यहाँ पर 6 ही है। सो D5 is more stable as compared to D4। Exactly कॉपर में भी ऐसे ही होगा। So more the number of exchanges, more is the energy released and more is the stability। अब यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं क्यों दिखाते हैं कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि टू गेट द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल्ड degenerate orbitals, यानी half filled configuration or fully filled, यानी degenerate orbital should be half filled or fully filled। इसके लिए वो कैसे करेंगे वो, उसे इसीलिए वो करते हैं शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन हो जाता है शिफ्ट फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द लो एनर्जी सबशेल टू द हाई एनर्जी सबशेल, so that to get stable half filled or fully filled configuration, because half filled and fully filled configuration is more symmetrical, more symmetry leads to stability। और उससे क्या होता है, हाफ फिल्ड और जब फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे डिजेनरेट, उससे एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है द एनर्जी रिलीज इज मोर, नंबर ऑफ एक्सचेंज जब ज्यादा होगी एनर्जी रिलीज विल बी मोर, सो एक्सचेंज एनर्जी विल बी मोर and stability will be more।